options. Options हमारे पास है. We want to select any one. Then we will use the radio buttons. ठीक है? For example, you are supposed to choose the subject. Suppose any optional subject is there, you can choose any one. So we can place a few buttons on the form like this. SUPW. Okay, you are supposed to choose art, music, and craft. Okay. So if you click on art, okay, that means when we click on any radio button, which property is used? Checked property. Checked property, whether it is true or false. Okay. If we click on this, checked property is equal to true. If we deselect it, again click on it, this get deselect. Or if I click on this property, this button deselect, तो ये checked इसकी property false हो गई, इसकी checked property true हो गई. ठीक है? तो we are supposed to check the checked property of the radio button to check कि कौन सा radio button select हुआ है. Yes, Arman, Akshat, Anek. तो when we want to check the property, checked property check करनी है, देखिए कौन सी बटन की checked property true है, तो we are going to use the if then else statement. If checkbox 1 dot check equals to true, अगर ये true है then क्या करें? मैसेज डिस्प्ले करवाए, कोई कैलकुलेशन करवानी है वो करवा सकते हैं. Whatever option you want to do, that will be done after the then statement. So if then statement is used to check the checked property of radio buttons. Okay. So few properties जो common है आपके पास. One is name property. ठीक है. Name property of the checkbox. Text property of the checkbox. Display the जैसे ये art लिखा है. ठीक है. तो ये that will be written in the text property. ठीक है. Enabled property, visible property. They are common. For color property, back color property, font color property. ठीक है. All these properties are same. For color, font, enable, visible. Enable means it is visible, but it is gray. Highlight नहीं है, इसमें click नहीं कर सकते. That is enabled property is false. You cannot click on this button. Okay, if enabled property is true, you can click on the button. बिल्कुल होते हैं, वहाँ पे भी रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस होते हैं. Sometimes आप किसी न्यू वेबसाइट पे रजिस्टर करते हो, आपके पास वो आपके इंटरेस्ट पूछता है. वेबसाइट है, they ask you the interest. तो आप उसमें से इंग्लिश, हिंदी या लैंग्वेजेस चूज करते हैं. Then we are using the multiple options. When we want to select the multiple options, we will use the checkbox. When we can select the multiple options. रेडियो बटन जहां पर आपके पास वो आता है मेल फीमेल, आपके पास ऑप्शन 3 होती हैं. ठीक है. 2 या 3 ऑप्शन है. You can select anyone. Then there is a radio button. हाँ, आपके गूगल फॉर्म्स में होते हैं या और भी कई फॉर्म्स में होते हैं. नेम, क्लास, आप एक चीज चूज कर सकते हो. Then you will use the radio button. When you want to select the multiple options, you can select have the checkbox like English. Yes, English, Gmail ID, password, Punjabi. ठीक है. अदर लैंग्वेजेस कोई भी हो सकती है. सपोज मराठी. ठीक है. तो you can have the various check boxes. You can select many options out of these. Then we will use the checkbox. Again, properties आपकी same रहेंगी. Name, text, checked. Checked property true or false. If I had clicked on any checkbox, its checked property is true. If I deselect by clicking again, its checked property is false. Again, when we want to perform some action, कि इसको click करने पे क्या हो, तो we have to check if checkbox 1 by default name use कर रही हूँ, you can give new name. If checkbox 1 dot check
equals to true, then statement. क्या करवाना है? एक मिनट बोलो। रेडियो बटन है, अगर तुम्हें ज्यादा ऑप्शन करने का हमको चेक बॉक्स क्लियर है? दोनों बटन्स का मीनिंग क्लियर है? Okay, let's do one program which is given in your book also with the radio buttons. Suppose on a form I had 3 radio buttons with the annual income. This is the label. इसमें मैंने सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, annual income. Now we are having okay, 3 options are there. Now I want to display a message based on the selection of check radio button. Your annual income is, जो बटन सेलेक्ट करेंगे वो मैसेज यहाँ आएगा, ठीक है? If I click on 5 lakh, it will display me a message. Your annual income is 5 lakh. If you select on 8 lakh, it will display the message in the label. Your annual income is 8 lakh. Simple. अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ एक सिंपल चेक बॉक्स को यूज कैसे करना है? Now, एक तो करनी पड़ेगी ना बेटा, तीनों में से एक तो सेलेक्ट होगा ही होगा. अगर कुछ नहीं करोगे तो मैसेज भी डिस्प्ले नहीं होगा. सिंपल. अगर किसी पे क्लिक नहीं करेंगे तो मैसेज भी डिस्प्ले नहीं होगा. नहीं, लेबल पे मैसेज डिस्प्ले करवाना. इट्स अ लेबल. सपोज आई एम गिविंग इट अ नेम लेबल 2 because my label 1 is here. ठीक है? आई एम गिविंग इट अ नेम एज लेबल 2. लेबल 2 पे क्लिक करेंगे, it will give me the message. That means we are not having any command button now. बटन नहीं है, आपके इसकी क्लिक इवेंट पे लिखना है. अब आपका जो कोडिंग आएगी that is not button 1 underscore click. अब बटन आएगा radio button 1 underscore check. check, ठीक है? radio button underscore check. तो उसकी क्लिक इवेंट पे, checked इवेंट पे we are going to write the coding. तो तीनों के लिए अलग अलग आएगा. प्राइवेट सब रेडियो बटन अंडरस्कोर चेक. बेटा वो प्रॉपर्टी है, मैं अभी फंक्शन लिख रही हूँ, वहां पे लिखा नहीं हुआ फंक्शन ऊपर, प्राइवेट सब पे लिखा ही नहीं हुआ. यस, ठीक है? नाउ अब क्या करना है? इफ कोडिंग हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है? इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक, डॉट के बाद प्रॉपर्टी होती है इक्वल्स टू ट्रू. ठीक है? दिस इज द नेम ऑफ कंट्रोल. डॉट के बाद प्रॉपर्टी है. इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक इक्वल्स टू ट्रू, देन क्या करें? लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू योर एनुअल इनकम इज 5 लाख. ठीक है? हाँ जी. लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू योर एनुअल इनकम इज 5 लाख. हाँ जी. ये रेडियो बटन्स है. These are 3 radio buttons. ठीक है? These are 3 radio buttons. प्रॉपर डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे to open the code window. Double click on this radio button to open the code window. Private sub radio button underscore check वाला procedure आएगा. Then you will write if radio button 1 dot check equals to true. अगर true है then display this message. False होने पे मुझे कुछ नहीं करवाना है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया ended and then close the procedure. हाँ जी.
कौन सा साइन? ब्रैकेट में आपके पास काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम राइटिंग कॉपी पे लिखते वक्त वो नहीं लिखते हैं, ठीक है? हाँ, मैं करवाने लेती हूँ, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। अगर आप इसमें क्लिक कर चुके हो, ठीक है, आपने क्लिक किया, ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये मैसेज ऑलरेडी डिस्प्लेड है, हमने वो ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एल्स पार्ट नहीं लिखा, फॉल्स वाली मैंने कुछ नहीं लिखा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि वो इरेज हो जाए, हाँ वो कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लिया, बट मैसेज इज ऑलरेडी डिस्प्लेड, तो वो इरेज नहीं किया ना हमने। मैसेज कैसे डिस्प्ले कर देंगे? लिसन, जो कृतिका का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज कि अगर मैंने 8 लाख डिस्प्ले क्लिक किया तो देयर शुड बी नो मैसेज, है ना? दैट मींस इसकी प्रॉपर्टी फॉल्स होने पे लेबल जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, राइट? तो दैट मींस उसके लिए मुझे यहाँ पे एल्स पार्ट यूज करना पड़ेगा ना, कि अगर ट्रू है तो मैसेज डिस्प्ले करवाए, एल्स क्या करें? आप क्या लिख सकते हो अगर आप इसको बढ़ाना चाहो? एल्स क्या करे? लेबल टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक, तो एंटर डबल कोट्स में ब्लैंक स्पेस है, वन स्पेस, वो इरेज हो जाएगा, तो ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस हो गया ना, ठीक है? ये मैंने सिर्फ इसलिए कराया बिकॉज़ कृतिका हैड रेज्ड द क्वेश्चन, अदरवाइज अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे तो क्या होगा? क्लिक करेंगे, मैसेज आ गया, सेकंड क्लिक करेंगे, सेकंड आ जाना है, थर्ड क्लिक करेंगे, थर्ड आ जाना है, वो रिपीट हो जाना है, तीनों में से एक तो क्लिक होना ही है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं अब, दैट्स व्हाई वो स्किप किया हुआ था। हाँ, ठीक है मैम, पर वो क्लियर नहीं होगा ना, ओके, क्या नहीं डिस्प्ले होगा? अगर हम इससे 8 लाख दिख रहा है तो यहाँ पे आएगा योर एनुअल इनकम इज 8 लाख, हम उसकी कोडिंग करने लगे ना, तो रेडियो बटन तीनों में से एक तो क्लिक होगा ही होगा, एक तो क्लिक होगा ही होगा, एक का तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में जाके भी ट्रू रख सकते हैं, डिजाइनिंग टाइम पे एक की प्रॉपर्टी ट्रू कर दो तो एक तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा ही होगा। हाँ जी, सेम हमने 3 बार लिखना है, यस 3 बार, ठीक है? सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा योर एनुअल इनकम इज 8 लाख, ठीक है? सेकंड लाइन क्या आएगा? योर रेडियो बटन 2, यहाँ पे रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 2 is checked, then label to dot text of property is 8 lakh, your annual income is 8 lakh, ठीक है? आपको कॉपी पेस्ट किसने सिखाया? चीजें सीखी है बट उसको स्मार्टली यूज नहीं करते, बना लिया, एक प्रोसीजर बन गया, डबल क्लिक ऑन इट, सेकंड प्रोसीजर ओपन हो गया, इफ प्राइवेट सब रेडियो बटन 2 अंडरस्कोर चेक का प्रोसीजर ओपन हो गया, सिलेक्टेड, इतना सेलेक्ट करो कॉपी में, ठीक है? प्राइवेट सब और एंड सब के बीच में, सॉरी एंड इफ तक सेलेक्ट करो, एंड सब नहीं करना, ठीक है? सेलेक्ट करो, कॉपी कंट्रोल सी, दूसरे प्रोसीजर में इन बिटवीन कर्सर रखो, कंट्रोल बी, पेस्ट, तो चेंज क्या करना है? रेडियो बटन 2 और 8, दैट्स इट, क्विकली and if to finish the if condition, block finish करें, block का, हाँ जी, टाइम नेक्स्ट की नहीं, ओके, क्लियर है? रेडियो बटन, कम टू द चेक बॉक्स की कोडिंग भी आपके पास सेम है, if checkbox 1 dot check equals to true, then क्या करें? if checkbox 2 dot check equals to true, then क्या करें? ठीक है, सेम कोडिंग है, that program we will do in the lab or I can show you by showing the demo, कोडिंग सेम रहेगी उसके लिए भी। चेकबॉक्स के लिए भी सेम रहेगी, मल्टीपल कर सकते हैं, तो यानी जितने चेकबॉक्स चेक्ड होंगे सबके लिए कोडिंग एग्जीक्यूट होगी, डॉट आई,
चेकबॉक्स में टिक आएगा, रेडियो बटन में डॉट आएगा। वहां पर अगर मल्टीपल चेक बॉक्सेस सेलेक्ट हो रहे हैं तो मल्टीपल जो आपकी स्टेटमेंट्स है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी, सारे चेक बॉक्सेस की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जैसे आपके पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दी हुई है दैट इज आल्सो फॉर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आपने अपना नेम या कोई मैसेज डिस्प्ले करवाया, यू वांट to make it bold, italic and underline. Any text that you want to enter, any name that you can enter. Now if I click on bold, checkbox हो गया, if checkbox 1 dot check equals to true, then इसकी property bold होगी। label text box या label make it text box because text you enter करोगे ना उसको बोल्ड करना आपको। फॉन्ट प्रॉपर्टी आएगी, इसके प्रॉपर सिंटैक्स है फॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड करके, आपको दिया हुआ बुक में, ठीक है। आपको क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 इफ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक इक्वल्स टू ट्रू, देन text box 1 dot font then equals to font, new font। आपका ये प्रॉपर फंक्शन है चेंज करने के लिए, न्यू फॉन्ट, ये आपको एज इट इज लिखना है, स्पेसेस का ध्यान रखना है और डॉट्स का भी। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड। ये आपको एज इट इज लर्न करना है। न्यू फॉन्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। न्यू फॉन्ट इज अ बेटा एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, उसके ये दो आर्ग्यूमेंट्स है कि उसको हम पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट है और फॉन्ट स्टाइल जो है वो बोल्ड होना चाहिए। ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसका यही सिंटैक्स है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट उसका फॉन्ट चेंज करके बोल्ड में। एल्स, इसमें एल्स की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको डीसेलेक्ट कर दिया तो ये वापस रेगुलर होना चाहिए, तो ये वापस रेगुलर होना चाहिए। तो अगेन वी विल राइट सेम थिंग, टेक्स्ट बॉक्स 1 dot font equals to new font text box 1 dot font, मैम से font साइज रेगुलर है, font style dot regular। अगर जैसे बोल्ड का बोल्ड ही रहेगा ना, अगर मैंने इसको डीसेलेक्ट भी कर दिया वो बोल्ड ही रह जाएगा, इटैलिक हो जाएगा बट वो रेगुलर वापस नहीं आएगा। हाँ क्या इसमें एल्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरी नहीं, नहीं वो जरूरी नहीं है। आपका यहाँ पे स्पेस नहीं होगी, डॉट फॉन्ट में यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ स्पेस नहीं है, कॉमा के बाद एक स्पेस होती है, फॉन्ट स्टाइल डॉट स्पेस का होता है कि ऐसे क्लिक करते हैं कहीं। सम टाइम बेटा यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, टाइपिंग करते हो यहाँ स्पेस दे देते हैं, वो तो अपने आप करेक्टली ना होनी, वहाँ एरर आ जाती है। हाँ, अगर यहाँ स्पेस नहीं दोगे तो एरर आ जाएगी क्योंकि फंक्शन नेम गलत हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि टाइपिंग करते वक्त आप इसको ध्यान रखेंगे ना। ये हमारी कोडिंग होगी, इसके क्लिक की चेक पे, चेक बॉक्स 1 प्राइवेट सब चेक बॉक्स 1 अंडरस्कोर चेक, ठीक है। सेकंड फिर होगी प्राइवेट सब चेक बॉक्स 2 अंडरस्कोर चेक, उसमें सेम सारी कोडिंग आएगी, कॉपी कर लेना। सिर्फ एक चीज करनी है, यहाँ इटैलिक, सिर्फ बोल्ड की जगह इटैलिक, और यहाँ पे चेक बॉक्स 2, if checkbox 2 dot check equals to true, then font style dot italic, ठीक है। देन थर्ड पे करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, प्राइवेट सब चेकबॉक्स 3 अंडरस्कोर चेक
देन कॉपी करोगे इफ चेक बॉक्स 3 डॉट चेक इक्वल्स टू ट्रू, देन सेम आएगा यहाँ पे अंडरलाइन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ये दो प्रोग्राम्स आपके रेडी हो गए। whenever we will get the lab you will do these two programs in the lab. ओके मैम, अगर आपको इसको करंट चेंज करना हो बेटा वो उसके लिए तो वो सिंटेक्स उसका है, उसका फंक्शन लिखो ऐसे कलर के लिए डॉट कलर वो हां कलर हां आएगा, उसका भी आएगा। ये सेकंड है, ये फॉन्ट कलर से अलग से फंक्शन होगा, वो देख के बताती हूँ क्या है। हाँ इसमें बेटा रेडियो बटन में यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन। आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो दूसरी डीसेलेक्ट हो जाती है, आप एक ही चूज कर सकते हो आउट ऑफ मेनी। यहाँ पर आप सारी चूज कर सकते हो। मैंने बोल्ड पे भी क्लिक कर दिया, मैंने इटैलिक पे भी कर दिया, तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड और इटैलिक दोनों होगा। मैंने तीनों पे क्लिक कर दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों होंगे। दोबारा क्लिक करके मैंने इटैलिक हटा दिया, बोल्ड और अंडरलाइन रह जाएगा, इटैलिक हट जाएगा, इटैलिक के लिए रेगुलर हो जाएगा। तो चेक बॉक्सेस अलाउज यू टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन। जैसे आप प्रेफरेंसेस लैंग्वेज प्रेफरेंस चूज कर रहे हो, आप वहां पे मल्टीपल टिक करते हो, चेक बॉक्स है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ नोट डाउन इन योर रफ कॉपीज वन मोर थिंग। हाँ जी बेटा, यहाँ डॉट बोल्ड डॉट अंडरलाइन डॉट इटैलिक डॉट ऑनलाइन में बेटा अटेंडेंस कौन ले रहा है? जब जीएनटी okay, one topic is we had already done one of the control statements. Control statements means usually in a procedure, जो function है हमारा प्राइवेट सब कोई भी एक function लिख रहे हैं, all the statements are executed in a sequence, order में चल रही हैं, but control statements helps us to change the flow of sequence, either by checking the condition or by repeating a set of statements multiple times. Like जैसे हमने if then condition करी है, if then condition में आपका क्या हो रहा है, सारी statements execute नहीं होती हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो वन सेट चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा सेट चलेगा। तो दैट मींस सारी स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंस में नहीं चल रही हैं, हम उस सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली। दैट इज व्हाई कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड, अंडरलाइन कर लो बुक में या लिख लो, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू चेंज द फ्लो ऑफ कंट्रोल, पेज नंबर 101. Control the execution of a program either by repeating or skipping the execution of a statement. Skip कर रहे हैं depending on the condition, या मुझे एक ही statement को 4 बार repeat करना है या एक ही statement को multiple times repeat करना है. For that purpose we will use the looping statement. They help us to control the execution of a program either by repeating or by skipping the execution of a statement or set of statements. ठीक है? Now there are two types of control statements. One is decision making statements. Note down in your rough copies. And second is looping statements. आप लिखोगे? एकदम बुक में सब कुछ है. Looping statements. Now, अब क्या हो गया? Decision making statements are again of two types. One is if then else. Second is select case. Decision making statements again दो तरह की है. One is if then else. Second is select case. Looping statements are again of two types. For next and do while. Select case. ठीक है? Now out of these we had done only
Now we will do select case. ठीक है? These two statements, these are given on the last page of your chapter. ठीक है? These are given on the last page of your chapter.